Assalamu alaikum class 4. I hope that you all are doing well at your homes and have enjoyed your winter break, because we are meeting for the first time today after winter break. So I hope that you are fit and fine, all of you, and have spent an enjoyable holidays staying at your homes. Am I right? Fine. You must have remembered that before this winter break we were doing Islamic age, science and exploration, and Islamic era of science, and then we studied about European scientific inventions and different scientists, and that was unit number 9. Today, and we had done units written work, so unit number 9 had been completed before your winter holidays. Today we will be starting with unit number 10, and the topic is colonization. Colonization. This word has been taken from colony. What is the meaning of colony? Can you tell me, any one of you? Please take out your dictionaries and find out the meaning of colony. I have my own dictionary with me. Let's find it together. Okay, colony. C, first go to C, then O, C-O, then C-O-L. Colony. Have you find it out? Yes. A country or area under the control of another country and occupied by settlers from that country. It means that if there is a country, let's suppose it's a country, and another country has taken away a part of it to live into and rule that particular area, that will become a colony, right? एक मुल्क के अंदर किसी और मुल्क के लोग किसी जगह पे आके रहना शुरू हो जाए और वहां पे उनके रूल्स हो, उनके मुल्क के, ना के मेन मुल्क के, तो वो कॉलोनी बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर पाकिस्तान में कोई एक एरिया हो जहां पे दूसरे मुल्क के लोग आके रहना शुरू हो जाएं और वहां पे अपने रूल्स सेट करके रहें अपने मुल्क के मुताबिक, पाकिस्तान के रूल्स फॉलो ना करें, तो दैट विल बी अ कॉलोनी। ठीक है, और इसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइज इज टू मेक अ कॉलोनी इन और टेक ओवर अ प्लेस ऑफ योर ओन यूज। कि आप किसी भी मुल्क की एक जगह पे कब्जा कर लें, वहां पे अपना कानून बना लें, अपने मुताबिक रहें, उस मुल्क को फॉलो ना करें, दैट विल बी अ कॉलोनी एंड द प्रोसेस विल बी कॉलोनाइजेशन। ओके, वी विल बी टॉकिंग अबाउट Portuguese in India, and we will be talking about Christopher Columbus's first voyage, right? So let us first find out the exact position of Portuguese. Let me show you the map of the world. See, this I have the map of the world in front of you. Let's identify the continents first. Okay, the biggest one is Asia. Then adjacent to Asia is Europe. Adjacent to Europe here on the southern side is Africa, right? Now here it is North America towards the North Pole of the world, and this is South America towards the South Pole of the world. And Arctic region is all around with many of the countries. Okay, now we have to find out about Portugal. Where is Portugal? Let's find it out. I'll focus more and more. Can you read this word? Here?
It's Portugal. This one, it's near to Spain. And in which continent? This continent is Europe. Exactly. This continent is Europe. So Portugal is in Europe. Right? And they started a large colony in Goa, in India. Right? Now, where is India? Let me show you India. I just have to adjust my camera. Can you see India here somewhere? I can see it very well. India. And that is our dear homeland, Pakistan. India. Okay? So, a group of people from Portugal started a large colony in Goa in India. Right? This is Goa. Here. From here, people came to live over here in India, Goa, and they started a colony over there. And they sell spices there. अब spices क्या होते हैं? Spices. When we say that our food is very spicy, what do we mean by that? हाँ, मिर्चें बड़ी हैं, मसाले, ठीक है? Spice is मसाला जात. अब the spices came from Spice Islands, Moluccas, near Indonesia. Right? Ab now, where is Indonesia? Let's find it out. Indonesia. Can you see Indonesia somewhere? Indonesia. Let's find it out. I think I've got it. Let me adjust the camera. Indonesia. Can you see here? Let me adjust it. See, I have to adjust my camera again. It will take a while, but I'll show you. Definitely. Can you read it? Indonesia. Right? Now, इंडोनेशिया के पास से स्पाइस आइलैंड था. स्पाइस आइलैंड था, ठीक है? मसाला जात थे. अब मसाला जात में कुछ है मेरे पास, which I have bought for you. क्लोव. क्लोव किसको कहते हैं? क्लोव कहते हैं लौंग को. ये देख रहे हैं आप? दिस वन मैं आपको दिखाती हूं, दोनों पकड़ के एक साथ. ये ठीक है, ये हमारे घरों में भी होते हैं. क्लोव, इसको कहते हैं लौंग. दांत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं. मामा से आप कहिएगा, वो आपको दिखाएंगी. लौंग और क्लोव्स, एंड दे हैव अ वेरी good fragrance and they add taste in our food. Okay, then we have nutmeg. This is nutmeg. Okay, their seeds are used. This a very small seed I have of it. The seeds are used in perfumes and cooking and medicine. This rich. Okay, nutmeg. And then we have cinnamon is the bark of the tree and it is used in cooking and medicine. This is cinnamon. दालचीनी जिसको कहते हैं ना, ये सारे मसाला जात, सारे spices will be available in your homes definitely, and you may ask your mother to show them to you. And this is a bark. ये चाल है, दरख्त की चाल है, ठीक है? This is bark of the tree and its taste is too good. It is used in cooking and medicine. Whenever I make tea for myself, I put cinnamon in it definitely because it tastes so good. Okay, now we will be starting with the reading of page number 82 and 83. Please open up your World Watch book 3 and let's start reading of it. Page number 82, colonization. The Portuguese in India. A colony is far off land that a country captures and rules. यानी ये कॉलोनी क्या होती है? दूसरे मुल्क का कोई ऐसा इलाका जहां पे कोई और मुल्क आके कब्जा कर ले और अपनी हुक्मरानी जमा ले. पोर्टुगल इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. अभी हमने देखा है ना, यूरोप में है पोर्टुगल, एक छोटा सा मुल्क.
In the 15th century, the King of Portugal paid sea captains to find colonies that had riches like gold, silk and spices. 15वीं सेंचुरी में, सदी में, पोर्टुगाल का जो बादशाह था उसने अपने जो बहरी जहाज के चलाने वाले थे ना कैप्टन्स, उनको एक ये हुक्म दिया और उनको पैसे दिए इस काम के कि वो मुख्तलिफ कॉलोनीज फाइंड आउट करें दुनिया में जहाँ पे जिनके पास बहुत सारा सोना हो, सिल्क हो और मसाला जात हो। अब ये देखें, ये तस्वीर देखें गौर से। अ पोर्टुगीज सी कैप्टन लैंडिंग इन इंडिया इन 1498। ठीक है, इंडिया में कॉलोनी बनाई ना उन्होंने, गोवा में, अभी मैंने हम बात की है। ओके, पोर्टुगल शेयर्ड अ लार्ज कॉलोनी इन गोवा, started a large colony in Goa in India because traders came to India from the far east to sell spices there. अब पोर्टुगल ने एक गोवा इंडिया के इलाके में आके एक कॉलोनी बना ली क्योंकि इंडिया में जो ताजिर थे वो मशरिकी इलाकों से आते थे मसाला जात बेचने के लिए। These are some of the spices they sold. अभी हमने देखे ना वो सारे मसाला जात हमने देखे हैं। ये क्लोव, the flower buds of a tree used in cooking, perfume and medicine. Nutmeg, the seeds of a tree used in cooking, perfume and medicine. Cinnamon, the bark of a tree used in cooking and medicine. Right? Most spices came from the Spice Islands, the Moluccas near Indonesia. बहुत से स्पाइसेस या मसाला जात जो हैं वो स्पाइस आइलैंड से आते थे, इंडोनेशिया के पास से। द ट्रेडर्स केप्ट दिस सीक्रेट, और ताजिरों ने ये बात राज में रखी थी। The people in Goa were Muslims. गोवा के लोग मुस्लिम्स, हिंदूज, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। गोवा के लोग थे, मुसलमान भी थे, हिंदू थे, यहूदी और ईसाई थे। The Christian church sent priests to Goa to make more people Christians. अब ईसाई के जो चर्च के पादरी थे वो ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा पादरियों को गोवा भेज रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बना सकें। They built monasteries and churches. उन्होंने अपने अपने चर्च बना लिए और इबादत गाहें बना ली। They gave rice to the poor people who became Christians and gave important jobs to others. उन्होंने गरीब लोग जो होते थे ना, जो क्रिश्चियन बन जाते थे, उनको चावल देते थे एक लालच के तौर पे ना, और जो दूसरे लोग थे उनको अच्छी अच्छी नौकरियां देते थे जो पढ़े लिखे लोग थे। Some people pretended to be Christians and secretly kept their old religions. कुछ लोगों ने फ़ायदा हासिल करने के लिए क्रिश्चियन होने का बहाना बना देते थे और लेकिन अपना मजहब जो है वो राजदारी से जारी रखते थे। When they found out, जब उनको पता चला, the priests put many of them in prison and even killed them. और पादरियों ने बहुत सौ कौन में से कैद में डाल दिया और यहाँ तक कि उनको मार भी दिया इस बात पे कि वो धोखा दे रहे हैं। ठीक है, बहाने बना रहे थे ना कि हम ईसाई हैं, लेकिन वो अपने अपने मजहब को छोड़ा नहीं था उन्होंने, तो फिर पादरियों को गुस्सा आया और उन्होंने उनको जेलों में डाल दिया। राइट, नेक्स्ट पेज नंबर 82। Now on page number 83, let's study some facts. Spices did not grow in Europe. यूरोप में मसाला जात नहीं उगते थे। Spices were so expensive that people kept them in locked cupboards. और मसाला जात इतने कीमती थे, महंगे थे कि लोग उन्हें अपनी अलमारियों में रखते थे। Europeans served spicy meals to guests to show off their wealth. और यूरोप के लोग अपने मेहमानों को स्पाइसी से खाने खिलाते थे ताकि बता सकें जी हम बड़े अमीर हैं और स्पाइसेस खरीद सकते हैं। द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस वॉज पेपर, मिर्च सबसे महंगी मसाला था। ट्रेडर्स ट्रेवलिंग विद पेपर हैड आर्म्ड गार्ड्स। हाउ इंटरेस्टिंग है ना, ये आपको पता था कि जो मिर्चों के साथ ट्रेवल करते थे ना ट्रेडर्स, उनके साथ जी आर्म्ड गार्ड्स भी होते थे, असलहे के साथ फिरते थे वो उनके साथ। वाओ, स्ट्रेंज। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कोलंबस फर्स्ट वॉयज। वॉयज क्या होता है? समंदर का सफर। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा था वर्ड पिछले यूनिट में भी। क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज एन इटालियन एक्सप्लोरर हु वेंट टू लिव इन स्पेस। क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? इटली का एक एक्सप्लोरर था, यानी कह लें कि वो तलाश करने वाला था नई नई चीजें, जो कि स्पेन जाके रहने लगा। इन 1492 द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन पेड कोलंबस टू सेल वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू फाइंड अ न्यू रूट टू इंडिया एंड चाइना। 1492 में स्पेन के बादशाह और मलका ने कोलंबस को पैसे दिए
कि वो अटलांटिक ओशन में सफ़र करे और पता करे कि इंडिया और चाइना की तरफ नया रास्ता कौन सा बन सकता है। ठीक है, अब हियर इज अ मैप. A modern copy of the map Columbus used for his voyage. It shows North America and part of South America in white, but that wasn't on Columbus's map. अब ये सारे वाइट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, लेकिन ये कोलंबस के मैप पे नहीं थे, ये अब हैं, ये मॉडर्न है सारा एरिया. ठीक है, मॉडर्न मैप है, लेकिन ये कोलंबस ने यही रास्ता इस्तेमाल किया वॉयज अपने सफ़र के दौरान. The spice and silk traders traveled overland. मसाला जात के और सिल्क के जो ताजर थे वो ज़मीन पे सफ़र करते थे. दिस वॉज डेंजरस, ये ख़तरनाक था. बिकॉज द पीपल इन द लैंड दे क्रॉस्ड वर नॉट ऑलवेज फ्रेंडली. क्योंकि जिन जिन इलाकों से वो गुजरते थे ना, वहाँ के लोग हर दफ़ा ही दोस्ताना नहीं होते थे. इफ़ कोलंबस फाउंड अ सी रूट, अगर कोलंबस को समंदर में रास्ता मिल जाता, दे वुड नॉट हैव टू ट्रैवल ओवर लैंड. फिर उनको ज़मीन पे सफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी. Columbus did not know there was any land between the west of Europe and Asia. Columbus को पता नहीं था कि यूरोप और मगरबी यूरोप और एशिया के दरमियान में कोई ज़मीनी रास्ता भी है. He thought that the earth was much smaller than it really is. उसने सोचा कि ज़मीन जो है वो जितना वो सोचता ना उससे कहीं छोटी है. When he reached the Bahamas, islands near America, जब वो बहामा के आइलैंड पे, जजीरे पे पहुंचा जो कि अमेरिका के पास है, he thought they were the Indies. उसको लगा कि ये इंडीज हैं, यानी आइलैंड्स नियर इंडोनेशिया, कि इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं ये, उसको ऐसा लगा. ठीक है, ये उसकी ट्रैवलिंग है ना जो सारी, उसका ये जिक्र कर रहे हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 84. Page number 84 is a map. The modern map shows Columbus's first voyage. ये देखिए, ये उसका रास्ता है. यहाँ से he took this route, Azores, then Lisbon, Palos, then he Canary Island, then he went back to Cuba. Here, this was his route. ये रास्ता उसने अपनाया अपने सफर का. Christopher Columbus and the native people of Bahamas. नेटिव यानी वहाँ के आबाई लोग जो वहाँ रहते हैं शुरू से. क्रिस्टोफर कोलंबस और बहामास के आबाई लोग. We know about the native people of the Bahamas from Columbus's diary and from archaeologists. अब हमें कैसे पता चलता है बहामा के नेटिव और आबाई लोगों के बारे में? कोलंबस डायरी लिखता था. ठीक है, रूटीन में डायरी लिखता था, और वहाँ से उसकी डायरी जब मिली वहाँ से पता चला. और फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ चीज़ें जो उनको मिली थी. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो Yes, the people who studies history. Columbus wrote about the native people. अब ये उसकी डायरी है जिसमें उसने आबाई लोगों के बारे में कुछ लिखा है. They will make good servants, कि वो अच्छे नौकर बन सकते हैं, मुलाजिम बन सकते हैं. They learn quickly, वो जल्दी से सीखते हैं. We can easily make them Christians because they have no religion. हम उनको बड़ी आसानी से ईसाई बना सकते हैं क्योंकि उनका कोई मजहब नहीं है. I will bring back 6 of them. मैं अपने साथ 6 लेके आऊँगा. They have no modern weapons, और उनके पास कोई जदीद हथियार नहीं है. I could conquer all of them with 50 men and rule them as I please. मैं उनको 50 आदमियों के साथ फतह कर लूँगा और उन पे जैसे जैसे हुकूमत करूँगा अपनी मर्जी से, है ना, अपनी खुशी से. ये कोलंबस की डायरी का पेज है, उसने उसमें लिखा हुआ ये. और ये बहामास के हाउसेस हैं. लुक एट द नेटिव पीपल इन बहामास लिव्ड इन हाउसेस लाइक दिस. पक्के घर नहीं होते थे, ऐसे घर होते थे उनके, राइट. नाउ पेज नंबर 85. Columbus took back to Spain things that Europeans had not seen before. अब Columbus स्पेन से ऐसी चीज़ें लेके गया जो यूरोप के लोगों ने कभी नहीं देखी थी. Turkeys, parrots, potatoes, pineapples, maize and sunflowers. Turkey, ये वाला परिंदा is a turkey. ठीक है, टर्की उन्होंने नहीं देखा था कभी. तोते नहीं देखे थे, आलू नहीं देखे थे, पाइनएप्पल नहीं देखा था, मेज जौ को कहते हैं वो नहीं देखी थी, सनफ्लावर्स भी नहीं देखे थे उन्होंने. यूरोपियंस टुक मोर एंड मोर नेटिव पीपल एज स्लेव्स. अब यूरोप के लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ये आबाई बहामास को
अपना गुलाम बना लिया। आफ्टर 30 years few native people were left, और 30 साल के बाद बहुत कम आबाई लोग वहां बचे थे उस इलाके में, ठीक है, बाकी तो यूरोपियंस ले गए थे गुलाम बना के। अब फैक्ट क्या है, द इंग्लिश वर्ड हैमॉक comes from the native Bahama people's word for their beds। ये है जी हैमॉक, ये हम अक्सर मूवीज में देखते हैं ना, सी साइड पे हैमॉक है, ठीक है, दरख्तों के दरमियान में एक झूला सा बेड नुमा बनाया होता उन्होंने। Europeans had never seen hammocks. Soon they put hammocks in their ships for their sailors। अब यूरोपियंस ने, यूरोप के लोगों ने कभी हैमॉक नहीं देखा था, तो फिर उन्होंने हैमॉक जो है वो अपने शिप्स में बनाने शुरू कर दिया ताकि उनके सेलर्स भी आराम कर सके, ठीक है। चलिए, we'll stop our reading over here, just complete this puzzle। Columbus wanted to make people of the Bahamas change to this religion। किस religion पे वो चेंज करना चाहता था? Exactly, Christian बनाना चाहता था उनको, Christian। Okay, write with your pencils on the book। Land a country captures to rule। नंबर 2 में क्या लिखना है भाई? नंबर 2 कहाँ है? कॉलोनी। लैंड अ कंट्री कैप्चर्स टू रूल, यानी किसी मुल्क का वो इलाका जिस पे दूसरा मुल्क कब्जा कर ले और अपनी हुकूमत जमा ले, कॉलोनी। द पीपल इन द बहामास स्लेप्ट इन दिस टाइप ऑफ बेड। दिस टाइप ऑफ बेड इज हैमॉक। हैमॉक, स्पेलिंग्स मस्ट बी करेक्ट प्लीज। डैश पीपल आर पीपल हु बिलोंग टू अ प्लेस एंड वर बोर्न देयर। अभी बताया ना, नेटिव। नेटिव हम उन लोगों को कहते हैं कि जो वहीं पैदा होते हैं और उसी इलाके से इनका ताल्लुक। जैसे आई एम अ नेटिव ऑफ कसूर सिटी, ओके, और माई पेरेंट्स आर ऑल्सो नेटिव ऑफ कसूर सिटी। जहां हम पैदा होते हैं वो हमारा आबाई इलाका बन जाता है, जहां हमारे माँ बाप होते हैं, ठीक है, और हम वहीं रहें। तो देन अ टाइप ऑफ कॉर्न दैट कोलंबस टुक बैक टू स्पेन। कॉर्न, मेज जो है ना, मेज, यहाँ हमने पढ़ा है ना, कोलंबस यूरोप से वहां से लेके गए स्पेन से, इट्स मेज, MEIZE, मेज। और ये देखिए इंटरेस्टिंग, स्लेव, स्लेव, ओके। क्रिश्चियन, कॉलोनी, हैमॉक, नेटिव, मेज एंड स्लेव, राइट? Okay, that's it for today's lesson। Please read this lesson again to improve the understanding of the facts and try to keep them in your mind। In our next lesson, we'll be doing written work related to whatever we have just read, okay? Allah Hafiz।